Hello everyone, I welcome you to Rank Secure IS, and today we are going to discuss about how are we going to study the um, book on Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong. Okay, so I will be starting a course with you where we will be discussing this entire book in detail. So it's just an introduction to how we will be discussing it. Okay, before that, let me take you through the concept through some things by An Academy. So, An Academy is coming out with some new batches. That is there's a UPSC Civil Services batch for 2021, 2022, and 2023, and the batches are starting from 25th of January. Okay, that is the time when it is starting, and for 2021 prelims, as you know, it's really less time remaining. There's a 6-month batch for UPSC CSE prelims where prelims entire syllabus will be covered, and analysis of the test series PDF would be provided, session doubt clearing sessions, revision, and the top educators will be coming to you with all of these things. And the batch is starting on 25th of January. The courses are bilingual, they are in Hindi, they are in English. You can go for any of the courses that you want. Then we talk about a complete 1 year GS batch course which is focusing on 2022. So again the same things plus the things for mains will also be covered, and interview preparation will also be provided to you. Okay, so this is like a complete package. Again, it is available bilingual Hindi English. Okay, then we move to the next one, that is a 2 year batch course which is for 25, again starting on 25th of January, and it is prelims come mains, top educators, interview preparation. So you have the entire thing available for you, just that mains and interview will also be provided. So now again it is bilingual Hindi English, all of these. So I hope there are no doubts or problems with this. Now there is a course which is for NCRT batches also. So for NCRT, for UPSC Civil Service examination, this is for your proper base creation, it will be done so that you have a very strong foundation for civil services. It is starting on 25th of January. Again, it's going to be bilingual Hindi English. So this is what is the entire portion that we will be discussing. And if you want to subscribe and you want a discount, okay, getting a discount, taking a discount is your choice. If you want a discount of 10% on the entire thing, then you can use the code rank 10. If you use the code rank 10, you will be given a discount of 10%. So it's a huge discount. You can see yourself that if you are subscribing for 24 months, basically you have to pay 72,000 rupees, but otherwise if you are using the code you will have to pay 64,800. So obviously it's a benefit that you are getting, right? So in my suggestion, you should always use the code. Okay, now we will be moving forward. I will be discussing you as to how this book has to be discussed, and whatever is given in this book, how are we going to move on with it. All of these things will be discussed by me. Okay, so basically this entire book has been divided into two portions. One is the physical geography, other is the global climatic zones. फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या इस बुक से हम पढ़ते हैं, और आपका कौन कौन सा पोर्शन कवर अप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो पोर्शन कवर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वाले पोर्शन से जो आप इससे कवर करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, उससे मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर बार आते ही है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट से है ना, सेकेंड पार्ट से तो 1-2 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो मतलब अगर फर्स्ट पार्ट से 2 to 3 क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट से 1 to 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब ओवरऑल इस बुक से आपका कवरेज जो है वो 3 से 4 क्वेश्चंस है, कभी कभार 5 भी हो जाता है। तो मतलब ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हुई। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ऑल्दो जो टर्म्स हैं वो मैं इंग्लिश में ही आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि हिंदी में टर्म्स मेरे लिए डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो आई विल बी डिस्कसिंग इन द टर्म्स इन इंग्लिश, ठीक है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसमें दूंगी वो बाइलिंगुअल होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो उससे इसका फ़ायदा ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ जो कि हिंदी मीडियम के हैं और इस बुक को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बुक जो है ये इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है। तो क्योंकि आप उस बुक को कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको बाकी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इस कोर्स को देख सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल बेनिफिट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपको एक बुक जो कि सिर्फ इंग्लिश में वो आपको अपने हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो टर्म्स हैं बुक में जो कि इंग्लिश में ही दिए हुए हैं वो टर्म्स मैं इंग्लिश में ही यूज करूंगी। आई विल नॉट बी यूजिंग देम इन हिंदी। तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं जो पहला वाला पोर्शन है वो मेजरली किस बारे में बात कर रहा है। तो जैसे लैंड मास, ओशंस, कितने टाइप की विंड्स होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे विंड्स का मूवमेंट हो रहा है, रिवर्स जो हैं वो कैसे अलग अलग लैंड मासेस बनाते हैं, कैसे लैंड मासेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। जैसे रिवर्स हैं तो वो अपने डिपोजिशन से कैसे कैसे लैंड मास बनाते हैं, कैसे इरोजन से, जब रिवर्स जो है जब वो मूव करती हैं तो कौन कौन सा इरोजन करती हैं और कौन से लैंड मास कौन से लैंड फीचर्स बनाती हैं, ठीक है। रिवर के अपने कितने फेजेस होते हैं, जैसे रिवर के अपने खुद के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक उसका यंग फेज होता है, एक उसका जो प्लेन में है वो फेज होता है, एक उसका ओल्ड एज फेज होता है। तो वो कौन कौन से फेजेस में लाइफ रिवर जो है वो मूव ऑन करती है, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लेशिएशन, ठीक है। तो जैसे देखिए वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रिएक्ट करता है। तो जैसे वाटर जब फ्लोइंग फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है तो अलग है, जब ओशंस के फॉर्म में है तो अलग रिएक्ट करता है, जब वो ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब जब वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है तो वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाता है। सेम हम डिपोजिशन और इरोजन, ये दोनों चीजें जो है ये हम हर जगह डिस्कस करेंगे, है ना। डिपोजिशन एंड इरोजन जो है ये हम हर जगह डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो अलग अलग हैं। तो वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे मूव करता है, वो क्या क्या क्रिएशंस करता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन इम्पोर्टेंटली करेंगे। माउंटेन के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉक के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे आपको पता है कि रॉक्स हैं तो उसमें इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कौन किस में कन्वर्टेबल है, ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं, जल्दी बनने का प्रोसेस किसका है, स्लो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं, वॉल्केनोज जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं, प्लेट्यू जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हम देखेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो आपको देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे, पर क्योंकि ये एक इंडियन बुक नहीं है, मतलब इंडिया पे लिखी हुई बुक नहीं है, तो इसलिए इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं मिल पाएंगे। तो वो आपको अपनी इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें से आपको उसके एग्जाम्पल्स देखने होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सारे नहीं मिलेंगे। तो इन सब के एग्जाम्पल्स आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई रेनफॉल कैसे होती है, रेनफॉल कितने टाइप की है, ओरोजेनिक रेनफॉल क्या होती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होती है, ठीक है। उसके पैटर्न क्या क्या है, आपको वर्ल्ड के कौन से पार्ट में किस टाइप की रेनफॉल मिलेगी, उसका एक्चुअल प्रोसेस जो नेचुरल फिनोमेना है वो कैसा कैसा है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्रस्ट के अर्थ के बारे में,
अर्थ की क्रस्ट कैसी है, उसके नीचे का पोर्शन कैसा है, अर्थ की कोर कैसी है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल अलग अलग कैसे होता है, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस जो काम करते हैं सॉइल बनाने के लिए। इसके अलावा एक पूरा डिस्कशन है जो कि अर्थक्वेक पे डिस्कशन है कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे, अर्थक्वेक कैसे आता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, कौन से एरिया शैडो जोन में आता है, कितने तरीके की वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक जब मूव करता है तो कितने तरीके की वेव होती हैं, कौन सी वेव सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, कौन सी कम नुकसान पहुंचाती है, इस टाइप के जो डिस्कशंस हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे डिस्कशन चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो भाई टेम्परेचर जो है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपने देखा होगा मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो भाई मिनिमम टेम्परेचर को कब लिया जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर को कब लिया जाता है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। तो ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स की बात ज्यादा करता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है देखिए इस बुक की, और जो मैं आपके साथ इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ वो ये कि इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, जो फिगर्स इस बुक में दिए हुए हैं, जैसे रिवर के अलग अलग फेजेस के, ठीक है, फिर रिवर जो है जब वो ओशन में जाके या सी में जाके डिजोल्व होती है, मिलती है, तो वहां पे जाके वो किस तरीके का डेल्टा बना रही है, कौन से डेल्टा को क्या कहते हैं, कौन सा डेल्टा है जो कि किस नाम से जाना जाता है ना, ये सब चीजें जो है, कौन सी रिवर कौन सा डेल्टा बनाती है, नाइल रिवर है, गंगा रिवर है, अमेजन रिवर है, ये कैसा डेल्टा बनाती है, ये सब चीजें जो है ये आपको विद डायग्राम यहाँ पे मिलेगी, तो हम भी उसको विद डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, बट स्टिल आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विथ यू, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि अब नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए इसमें जो है वो वर्ल्ड के सारे क्लाइमेटिक जोन्स को प्रॉपरली डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो प्रॉपरली डिस्कस किया गया है मतलब जैसे आप सी इक्वेटोरियल से शुरू करते हुए पोल तक कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मॉनसून क्लाइमेट कैसा है, मेडिटेरेनियन कैसा है, सवाना कैसा है, ग्रासलैंड है, तो सवाना ग्रासलैंड अलग है, स्टेपी भी ग्रासलैंड है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक। इसके अलावा वो कैसे अफेक्ट करता है, मतलब देखिए जैसे इक्वेटोरियल है तो सिर्फ इक्वेटोरियल के ही फीचर्स नहीं, पर वो आपकी ह्यूमन लाइफ को, एग्रीकल्चर को, सिटीज को, वहाँ के बिजनेस को, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, इनको कैसे अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स कौन कौन से होंगे, मिनरल्स कौन कौन से अवेलेबल होंगे, ये सब चीजें, क्योंकि देखिए इन सब चीजों पे आपके एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ता है, और तो किसी चीज का फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें कैसी होंगी, वो कैसे काम करेंगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। तो सवाना, स्टेपी, मेडिटेरेनियन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, तो ऐसे आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन किया गया, और वो डिस्कशन जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ बुक के बारे में, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट, ठीक, और कौन से चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। और आप उसको किन किन बुक्स से आप मैच करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देने वाली हूँ इसमें कि आप उसको कहाँ से और कवर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, मतलब जीसी लियोंग पढ़ते पढ़ते आप कहाँ से और रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका कंप्लीट कवरेज होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ठीक है।
जो बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का मूवमेंट कैसा है, ठीक है, अर्थ गोल है ये आपको कैसे पता चलता है, अर्थ की क्रस्ट कैसे बना है, इंटीरियर कैसे बना है, कोर कैसे बना है, ओशंस कैसे बन गए, अलग अलग थ्योरीज कौन सी हो सकती हैं, एटमॉस्फेयर कहाँ से आया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इस सारे डिस्कशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि आपको ये करना है कि आप चैप्टर 2 ऑफ जीसी लियोंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 ऑफ जीसी लियोंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, पर आपका काम है कि आप चैप्टर 1 ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ जीसी लियोंग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपका काम है कि आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ फंडामेंटल ज्योग्राफी क्लास 11th ये वाला पोर्शन आपको खुद कवर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ तो मतलब अगर मैंने आज आपके साथ ये वाला पोर्शन डिस्कस किया है, ठीक है, तो मैंने आपके लिए जीसी लियोंग का पोर्शन तो कवर कर दिया, लेकिन आप उसके साथ ये वाले 2 चैप्टर्स जो है, सिर्फ 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के, आप ये कवर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे अगर हम देखें तो फिर मैं जैसे डिस्कस करूंगी कि कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स क्या हैं, अलग अलग एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक मतलब जो नीचे से फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सोजेनिक जो बाहर से फोर्स लगाया जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मतलब अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक है, वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, ठीक है, और उससे अलग अलग फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक। एंड आप क्या पढ़ेंगे, आप उसके साथ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। मतलब मैंने आपके साथ चैप्टर 3 ऑफ जीसी लियोंग डिस्कस किया, वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक पे, और आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा, तो इससे क्या हुआ, आपने सेम चीज का कवरेज आपको 2 बार मिला, ठीक है, एंड यू हैव कवर्ड अ लार्जर पोर्शन, सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस, ठीक। चलिए, नेक्स्ट थिंग कि हम अगर नहीं कंप्लीट हुआ, हम कंटिन्यू करेंगे पिछले से ही कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, आइलैंड्स कैसे बनते हैं, आइलैंड्स कितने टाइप के हैं, ठीक है, अलग अलग जो वो हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, कॉरल रीफ्स हैं, उससे आइलैंड्स बन रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, रॉक के टाइप कौन कौन से हैं, फॉर्मेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस अलग अलग कौन से हैं, या फिर हम देखते हैं ग्राउंड वाटर जो है वो क्या क्या बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जीसी लियोंग का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी, ठीक है, कौन सा, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे उसके साथ, आप पढ़ेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, ये कौन सा है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो आप बेसिकली देखिए, मैं आपको जीसी लियोंग पढ़ा रही हूँ, आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो मतलब आप ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो साइमल्टेनियसली कवर करते जा रहे हैं, और आपको क्विक रिवीजन भी मिल रहा है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स कौन से हैं और लैंडस्केप कौन से हैं, मतलब अलग अलग जो मैंने आपको बताया वाटर क्या ग्लेशिएशन के फॉर्म में है, रिवर के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में वो क्या क्या बना रहा है, ये हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको तो आई विल बी टीचिंग यू चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्रॉम जीसी लियोंग, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, और आप क्या पढ़ेंगे अपनी तरफ से, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, जो कि चैप्टर 7 है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, डन। तो मैं ये आपको बताती जाऊंगी कि आपको आज कौन सा चैप्टर उससे पढ़ना और हम क्या कवर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लास में तो बताऊंगी, पर आपको इसमें भी पता होना चाहिए। सो दिस इज अगेन चैप्टर
5, 6, 7, 8, 9, 10. Then we are moving towards the next very important portion. ठीक है, next very important portion जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं कि फिजिकल फॉर्मेशन, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको खुद कवर करनी है एनसीईआरटी से, क्योंकि ये इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी का पोर्शन है। ठीक है, इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी का पोर्शन है विच इज दिस पोर्शन। आई विल नॉट बी कवरिंग दिस क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको जीसी लियोंग में नहीं मिलता है। देन वी टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 13 ऑफ जीसी लियोंग, दैट इज वेदर। ठीक है, कैसा एटमॉस्फेयर ऊपर कैसा है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कैसे ऊपर जाके फॉर्मेशंस होते हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप चैप्टर 8 से। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट वी आर डिस्कसिंग कि इंसुलेशन, अर्थ हीट बैलेंस, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ग्लोबल विंड, साइक्लोन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 जो है उससे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स जो हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जीसी लियोंग से। ठीक है, वर्ल्ड के क्लाइमेट। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज। और मैं आपके लिए जीसी लियोंग से कवर करूंगी कौन कौन सा चैप्टर? चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक। ठीक है, तो ये वाले 2 चैप्टर्स आप कवर करेंगे एनसीईआरटी से और मैं आपके लिए कवर करूंगी जीसी लियोंग से 14 से लेके 25 तक। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपकी जीसी लियोंग खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने हैं, जो कि आपको या फिर इंटरनेट से पढ़ने हैं। तो उसकी लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जस्ट सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, बाकी इसमें से कौन कौन सा पोर्शन जीसी लियोंग में कवर हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बाकी कुछ पोर्शन है जो कि आपको इंटरनेट से या फिर बाकी एनसीईआरटी से कवर करना होगा। तो जैसे कि कुछ पोर्शंस हैं लाइक एल नीनो, ला नीना, एनसो, अर्बन क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, ये सब जो है वो आपको कहाँ से? इंटरनेट से रेफर करना होगा और कुछ पोर्शन मैं आपको इसका कवर करके दूंगी। ठीक है, तो जो मेरा कंटेंट है उससे और इंटरनेट से आप इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज यू नो जीसी लियोंग में इसके लिए बहुत छोटा छोटा पोर्शन है, सो आई विल बी कवरिंग ओनली दैट मच ऑफ पोर्शन। देन वी आर moving towards the next part, that is जो इंडियन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट है वो आई विल नॉट बी कवरिंग विथ यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके जीसी लियोंग में नहीं दिया हुआ है, वो वाला पोर्शन जो है वो आपके सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए नहीं कवर करूंगी, लेकिन आप उसको कर सकते हैं, बेसिक्स अबाउट ओशन एंड ओशन रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, लेकिन ओशन से रिलेटेड, मतलब ओशन में जो मूवमेंट हो रहा है और प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है और कोरल रीफ है, आइलैंड्स है, ये सारी चीजें जो है ये मैं चैप्टर 12 जीसी लियोंग से आपके लिए कवर करूंगी। और आप एनसीईआरटी का चैप्टर 11, सॉरी क्लास 11th का यूनिट 5 जो है वो आप कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें वाटर के बारे में, एनसीईआरटी में आपको वाटर कितना कितना परसेंट कौन कौन सा वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर कितना है, और ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए जीसी लियोंग से ओशंस वाला पोर्शन, मतलब इसमें मेजरली आपको करेंट्स वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक है, और ओशन करेंट्स को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे सैलिनिटी है, टेम्परेचर है, ये सब चीजें, कोरल रीफ, आइलैंड है ना, इंडियन ओशन रिलेटेड थिंग्स, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। दिस आई विल बी कवरिंग विथ यू। ठीक है, अब कुछ और पोर्शन, जैसे कि आपको कवर करना है
इकोलॉजी रिलेटेड पोर्शन, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, ये सब आपको क्लास 12th बायोलॉजी में मिलेंगे. ठीक है, आई विल नॉट बी कवरिंग दिस पोर्शन. आई एम गिविंग यू अ लिस्ट सो दैट यू कैन रीड इट योर सेल्फ. ठीक है, ये ज्योग्राफी का ही पोर्शन है पर आप उसको पढ़ सके इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये सब आपको इंटरनेट से पढ़ना है. फिर कुछ पोर्शन है जो मैं आपके साथ कवर करूंगी, जैसे कॉन्टिनेंट के फिजिकल फैक्टर्स. ठीक है, उसमें रिसोर्सेज, वेजिटेशन, ये सब कौन कौन से हैं ये आपको जीसी लियोंग में आई विल बी कवरिंग विथ यू. लेकिन आपको एनसीईआरटी की क्लास 5, क्लास 6 टू क्लास 8 कवर करनी है. ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट्स को ही मैं बाकी भी कवर कर रही हूँ, जैसे अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पोल्स, ये सब आपको जीसी लियोंग में थोड़ा थोड़ा मिलता है. ठीक है, सो वी विल बी कवरिंग दिस पोर्शन. सो आई विल बी कवरिंग दीज रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम जीसी लियोंग फॉर यू. Okay, so I hope there is no problem with respect to this. ठीक है, when we move forward, ये जो पोर्शन है जैसे पॉपुलेशन, सेटलमेंट, डेवलपमेंट, ये आपको रिलेटेड टॉपिक्स जीसी लियोंग से मिलेंगे. इन द आई विल बी कवरिंग. देन देर आर सम अदर पोर्शंस लाइक कि प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी जीसी लियोंग में ऑन द वर्ल्ड लेवल, मतलब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लोकेटेड है. सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं. ठीक है, इन द सेम मैनर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कैसा है, कम्युनिकेशन कहाँ कैसा है, ये आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है और आपको जीसी लियोंग से भी पढ़ना है. पर आपका काम अब ये है, ठीक है, कि आपको इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जीसी लियोंग में जो पोर्शन दिया हुआ है दैट इज नॉट वेरी अपडेटेड पोर्शन. लाइक दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉन्गेस्ट ट्रेन जो कि रशिया में चल रही है, लेकिन दे हैव नॉट डिस्कस्ड द न्यू पोर्शन. सो यू विल हैव टू discuss this new portion. You will have to read this new portion yourself. ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम करेंगे. तो मैंने आपको बता दिया कि हम कौन सा पोर्शन है जो कि जीसी लियोंग से आई विल बी कवरिंग फॉर यू. ठीक है, ऐसा कौन सा पोर्शन है जीसी लियोंग का जो मैं आपके साथ कवर करूंगी. और सो आई एम कवरिंग द एंटायर बुक फॉर यू. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसका बाकी पोर्शन कवर अप करना है. बाकी पोर्शन मतलब कि ऐसा पोर्शन जो कि आपको एनसीईआरटीज में मिल रहा है. तो देखिए, बाय द टाइम हम जीसी लियोंग कंप्लीट करते हैं, अगर आप ये वाले चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, दे विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अगर आप ये वाले चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपके ज्योग्राफी के 2-3 मेजर सोर्सेज जो है वो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ वंडरफुल कवरेज ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट मैं लगाती हूँ, एंड देन वी विल बी एबल टू फिनिश दिस एंटायर पोर्शन नाइसली. क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है ना. तो मैं ये करूंगी आपके लिए कि वेन एवर आई एम यूजिंग एनी ऑफ दिस, जैसे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक, आई विल बी टेलिंग यू टू रीड दैट रेलेवेंट पोर्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑल्सो. सो योर टास्क ओनली इज टू गो एंड रीड दैट पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, क्योंकि मैंने आपको ये वाला पोर्शन तो दिया ही हुआ है, राइट. तो मैंने तो आपको ये वाला पोर्शन दिया ही हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसको अपने हिसाब से एनसीईआरटी से कवर करना है. ठीक है, सो दैट देर आर 2 थिंग्स हैपनिंग. जब आपने इसको पढ़ा तो एक तो आपने नई चीज पढ़ी, फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका नया रिवाइज हो गया, और जो पोर्शन उसमें अवेलेबल नहीं है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो इट विल बी हैविंग अ न्यू पोर्शन अवेलेबल फॉर दैट. ठीक है, तो कोई टॉपिक या कोई लाइन जो कि जीसी लियोंग ने कवर नहीं करी है वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी. तो आपका जो कवरेज है ना वो बहुत वाइड हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज अ मेजर रिक्वायरमेंट, है ना. ठीक, तो बाय द टाइम वी आर फिनिशिंग दिस एंटायर पोर्शन, योर this thing would be covered. ठीक है, so give me a time of around 15 days. We will cover the book in 15 days, and simultaneously please keep reading the chapter from NCERT. नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो पढ़ना ही है. देखो, एनसीईआरटी का तो कोई एस्केप है ही नहीं, ये तो आपको पता है. ठीक है, अच्छा, साथ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मैं आपके लिए जीसी लियोंग लेकर आ रही हूँ.
आपको क्या फायदा होगा कि जैसे अगर आप साथ में एनसीईआरटी की बुक पढ़ते जाते हैं हिंदी में, ठीक है, तो जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कि स्पेशल वर्डिंग्स होते हैं, है ना, जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो टर्म्स होते हैं। सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू द टर्म्स, मैं आपको टर्म्स हिंदी में नहीं बता पाऊंगी, टर्म्स मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको वो टर्मिनोलॉजी भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं ज्योग्राफी में, जो कि हिंदी टर्म्स है, वो भी आपका कवरेज यहाँ से होता जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सरसाइज। तो मतलब अगर हम कल से शुरू करते हैं फॉर 15 days, इन 15 days आप क्या क्या कवर करने वाले हैं? यू विल बी कवरिंग 4 NCERTs, GC लियोंग, है ना, 4 NCERTs ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी की 4 NCERTs जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT है ना, क्लास 11th और क्लास 12th की आपकी NCERT है, GC लियोंग है, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा विद इन 15 days if you keep walking with me. So now it's your choice. If you want to walk with me, ठीक है, if you want to cover this portion, you can. लेकिन इसमें एक और काम करना है आपको। एक और काम क्या करना है कि आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक एंड आफ्टर यू कम अप विद दैट, ठीक है, यू रीड द ज्योग्राफी द एनसीईआरटी, यू विल हैव टू रिवाइज, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पर आप अगर चाहें तो आप उसके रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं, सो दैट व्हाइल यू आर रीडिंग एनसीईआरटी यू आर इन अ पोजीशन टू रिवाइज प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इससे क्या फायदे होंगे आपको? इससे ये फायदा होगा दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द पोर्शन, कंप्लीट योर ज्योग्राफी क्लियरली, ठीक। इसके अलावा एक काम और करना है, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम आस्किंग यू, ओके। एक काम और करना है कि आपको पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। मतलब ये कि जैसे हमने आज टॉपिक है वो आज हमने मान लीजिए टॉपिक पढ़ा, which topic, suppose weather is the topic that we have discussed. Now you just take out the questions from the portion weather and solve it, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर से पढ़ लीजिए, मॉक पेपर से पढ़ लीजिए, जहां से आप पढ़ना चाहें, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप पास्ट ईयर पेपर से पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी है, तो आप कहीं से भी उसको पढ़ लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली, ठीक है। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस पोर्शन को फिर से एक बार पढ़िए, फिर सॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज स्किप हो गई है या मैं भूल गया हूं, तो वो चीजें आप फिर से पढ़ लीजिए। तो देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने मेरे साथ 45 मिनट की क्लास अटेंड करी, फिर आपने जाके एनसीईआरटी बुक से पढ़ा, फिर आपने उसको रिवाइज किया और फिर आपने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए, तो इतना अगर आप एक दिन का अपना शेड्यूल रखते हैं फॉर ज्योग्राफी, ओके, आपका जो बाकी अपना शेड्यूल है दैट इज गोइंग ऑन, अगर आप ज्योग्राफी के लिए इतना रखते हैं, सो यू आर प्रिपेयरिंग for prelims and mains simultaneously and we will try to complete the portion within 15 days. तो ये आपका शेड्यूल है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड वी विल बी completing it very soon, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, टेक केयर, बाय बाय।